Welcome, children. Today we are going to learn a very interesting lesson about arrival of Europeans in India. Now, before going further, as I always tell you, this time also I am telling you, social studies and in that too history is very interesting part to learn and understand. But many of you feel that you are not able to learn history. Now, the reason behind that you are not able to learn history is because you are not considering it as a history. History means his story. If you considered history as a his story, then it becomes very interesting and like when you see pictures, when you see movies of Shah Rukh Khan or Salman Khan or Akshay Khan or Ajay Devgan, how you remember the story that what did Shah Rukh Khan do in so and so movie, what did Salman Khan do, and then when you finish that movie and when you come back, you tell the entire story to your family members or to your friends, right? In the same way, you have to understand the history. Here I am to explain you that how you can learn history in very interesting way. And I promise you that if you go through this entire video, you will be able to understand the entire chapter within few minutes. जी हाँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ ही मिनटों में ये वीडियो पूरा होते होते आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. So we are starting chapter 1, arrival of Europeans in India of social studies standard 8th, right? So let's begin. These are the points which we will be discussing today, and when you will go through these points, you will understand. I promise you that out of this, if you just see this video one time from entire video, 50% of the chapter will be on your mind, on your tongue, and you will be able to give answers, right? So let's begin. First we will go to chapter overview. We will see that arrival of Europeans in India and what was the effect. We will see this in our chapter overview. Now here are 4 points. First is why European nations wanted to come to India. The first point we have to understand that why Europeans wanted to come to India, right? Second point, how they discovered a sea route to India. Through which route? क्या वो रोड से आए, क्या वो प्लेन से आए, क्या वो दरिया से आए. सो हाउ दे डिस्कवर्ड, ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया को खोज पाए. इंडिया तो पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं था, इंडिया पहले से ही था, लेकिन आज हम समझेंगे कि क्या था और कैसे उन्होंने रूट को फाइंड आउट किया. सेकेंड इज अराइवल एंड एक्सपांसन ऑफ पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. अब सबसे पहले जो फॉरेनर्स इंडिया में आए, द फॉरेनर्स who came in the beginning were Portuguese, Dutch, British and French. These were the 4 people who came from 4 countries to India and establishment of British political power in India. So in entire chapter we will find out that what were the reasons of coming to India, how did they discover the sea route, and which were the main countries came to India, and how did British people establish their power in India. I hope इतना आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा. Next thing is that you have to remember the dates in the history, because when you say something with authenticity, with dates, तो उसमें आपको मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, उसमें टीचर को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद आ गई हैं. एंड द मेथड विच आई विल शो यू हियर, and the methods which I will show you here of remembering the dates will be absolutely uh, and the method which I will show you how to remember the dates will be very helpful to you. Now dates are divided into chronological order. First, हम जो ब्रिटिशर्स आए, जो फॉरेनर्स आए, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1498 से.
कौन आए थे सबसे पहले वो हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है 1600, उसके बाद आता है 1602, फिर 1608, 1612, 1757, 1764 एंड 1765। नाउ ये जो डेट्स हैं ये हम इस चैप्टर के रिलेटेड ही डेट्स हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर 1400, 1600, 1600, 1600, 1700, 1700। सो हम कौन से पीरियड की बात करेंगे? फ्रॉम 1400 टू 1700 इस साल की बात हम करेंगे। जैसे आज हमारा 25, 26 चल रहा है, या जो आप जब भी वीडियो देख रहे हो 2025, 2026, 2027 चलता होगा, राइट? So in this way, the first date which is written in the history for coming of the foreigners is 1498. अब 1498 में कौन आया? तो आया वास्को डी गामा। So 1498 वास्को डी गामा, 1498 वास्को डी गामा, 1498 वास्को डी गामा। इतना हमको याद रखने का है, राइट? सो आपको क्या करने का है? 1498 वास्को डी गामा, 1498 वास्को डी गामा। तो 1600 में क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुआ। किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? कहां पर हुआ? लंदन में। कैसे हुआ? थ्रू चार्टर। और किसने किया? बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, राइट? नेक्स्ट कम्स 1602। 1602 में क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई। मतलब 2 साल के बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? Then comes 1608. British first arrived at Surat. Captain William Hawkins. So 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, लेकिन 1608 में फर्स्ट ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आया वो आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कहां पे आया वो? सूरत में, राइट? नेक्स्ट 1612 में क्या हुआ? इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्टेड एट सूरत। ब्रिटिशर्स ने सूरत में एक फैक्ट्री स्टार्ट की, राइट? 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। लड़ाई हो गई आपस में, किसकी? फॉरेनर्स की। कब हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, हम आगे चैप्टर में हम देखेंगे। वी विल सी लेटर ऑन इन द वीडियो। देन 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल्स कितनी हुई? 1498 से लेकर 1765 के बीच में लड़ाइयां कितनी हुई? 2। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, राइट? एंड 1765 में क्या हुआ? दीवानी राइट्स हुए। अब ये दीवानी राइट्स क्या है आगे हम चैप्टर में सीखेंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा ये जो चैप्टर है अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कहां से शुरुआत हुई? 1498 से लेकर 1765 तक, राइट? सो आपको क्या करने का है? इसका एक कॉपी कर लेने का है और ये डेट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छी राइटिंग में लिख के जेरॉक्स करा के आप अपनी दीवार पे चिपका दो और इसको रोज एक बार देखो। जस्ट सी वंस डेली, इफ यू सी वंस टाइम यू विल रिमेंबर द डेट्स परफेक्टली, ओके? नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब 1498 से लेकर 1757 के बीच में ऐसे कौन से लोग थे जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा गया है? सो अगर हमको डेट्स और कैरेक्टर्स याद हो गए, so we are very powerful in history because it is his stories, मतलब उसकी कहानी, right? So here we will see that which were the characters. वास्को डी गामा क्या हुआ? पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था, पोर्चुगीज का रहने वाला था, लाइक हम इंडियंस हैं, राइट? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पोर्चुगीज का था। देन आया जामोरिन। जामोरिन कौन था? ही वॉज रूलर ऑफ कैलिकट who welcomed वास्को डी गामा। अब जामोरिन उस टाइम में कैलिकट में अपना इंडिया का राजा था। ही वॉज रूलिंग इन कैलिकट एंड उसने वास्को डी गामा को वेलकम किया। सेकंड कम्स, नेक्स्ट कम्स अल्फांसो डी अल्बुकर। कौन था ये? ये था मेजर पोर्चुगीज लीडर, मतलब पोर्चुगीज का मेन लीडर कौन था? अल्फांसो, राइट? देन विलियम हॉकिंस कौन था? ही वॉज ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हु केम टू सूरत। उसके बाद आता है सर थॉमस रो। कौन था सर थॉमस रो? ब्रिटिश एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट। मुगलों की कोर्ट में जो एम्बेसडर बन के आया, मतलब
ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया, वो कौन था? सर थॉमस रो। देन कम्स जहांगीर। कौन था जहांगीर? ही वॉज मुगल एम्परर हु ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को बिजनेस करने के राइट्स जिसने दिए पहली बार इंडिया में, वो था जहांगीर, राइट? Then comes Francis Day. Who was Francis Day? British officers who established Madras in 1639. Then Dupleix. Dupleix कौन था? Dupleix was French Governor General in India. फ्रेंच का गवर्नर जनरल, फ्रेंच का लीडर, आर्मी का लीडर, वो इंडिया में जो आया उसका नाम था डुप्लेक्स। एंड रॉबर्ट क्लाइव। यहां से शुरू होती है पूरी लड़ाई, राइट? रॉबर्ट क्लाइव वॉज ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर। You have to remember Vasco da Gama, Zamorin, Alfonso, William Hawkins, Sir Thomas Rao, Jahangir, Francis Day, and Dupleix. These are the main characters who played major role in establishment of foreign rules in India. फॉरेन जितने भी फॉरेनर्स आए थे, जितने भी फॉरेन से जो लोग आए थे, उनको एस्टेब्लिश करने में, उनका एरिया बढ़ाने में इन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, और ये लोगों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, व्हाई? लेट अस सी द रीजंस व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। बिकॉज कोई भी इंसान आता है तो उसका रीजन होता है। अगर समझ लो आप गोवा जाते हो घूमने के लिए, तो रीजन होता है भाई वैकेशन है, फैमिली भी फ्री है, पापा भी फ्री है, मम्मी भी फ्री है, चलो हम घूमने आते हैं। कोई गोवा जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई मनाली जाता है, राइट? सो इन दिस वे फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया, दे हैड रीजंस, दे हैड वैलिड रीजन, और वो रीजंस हम देखेंगे कि विच आर दीज रीजंस। नाउ फर्स्ट रीजन इज डिमांड ऑफ स्पाइसेस। मतलब मसाले जो होते हैं ना, आप खाते हो ना, पेपर, काली मिर्च, राइट? फिर लौंग, कार्डमम, इलायची, ये सब जो है वो स्पाइसेस है, और ये स्पाइसेस हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होते थे, और फॉरेन में इनकी डिमांड बहुत थी, और फॉरेन में वो नहीं होते थे। तो सबसे पहला रीजन जो उनका यहाँ पे आने का था वो था स्पाइसेस, मसाले, राइट? देन न्यू नीड फॉर न्यू ट्रेड रूट्स। अब उस टाइम में 1498 के आजू बाजू एक कंपास की इन्वेंशन हुआ था। कंपास में जो दरिया के अंदर डायरेक्शन दिखाता है, राइट? दैट वाज कंपास। कंपास वाज इन्वेंटेड। सो वो कंपास इन्वेंट हो गया, और एक पूरी लेबोरेटरी बन गई कि दरिया में हम रास्ता कैसे बनाए। रोड पे तो रास्ता होता है, जंगल से रास्ता होता है, उस टाइम में प्लेन्स तो थे नहीं, राइट? लेकिन वहां पे न्यू ट्रेड रूट्स होने लगे, न्यू सी रूट्स होने लगे, तो उसकी भी जरूरत थी। एंड सेकेंड, राइज ऑफ पावरफुल यूरोपियन किंगडम्स। तो फॉरेन में जो यूरोपियन किंगडम्स थे वो बहुत पावरफुल होते थे। सो दीज वर द थ्री रीजन, मेन रीजन व्हाई फॉरेनर्स केम टू इंडिया, राइट? सी रूट डिस्कवरी। टर्क्स ब्लॉक लैंड रूट्स। टर्क्स, जो टर्क के लोग थे, वो रास्ता जो इंडिया पे आ रहा था उसको रोक दिया था, बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो दे ब्लॉक द रूट्स। अब ये रूट्स ब्लॉक हो गए तो फॉरेनर को जो इंडिया में आ रहे थे उनको जरूरत पड़ी कि भाई कोई ऐसा नया रास्ता खोजा जाए, सम न्यू रूट में बी फाउंड आउट, कि हम वहां पे इंडिया में टर्क्स को ओवरटेक करके, टर्क्स का रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से हम जाए, राइट? प्रिंस हेनरीज नेविगेशन स्कूल। प्रिंस हेनरी ने नेविगेशन स्कूल शुरू की थी। मतलब वहां पे वो दिखाता था कि भाई दरिया में कैसे सफर करने का है, दरिया के सफर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, शिप बनाते थे। तो वो नेविगेशन स्कूल जो थी उसकी शुरुआत हुई। तो नेविगेशन स्कूल एंड न्यू ट्रेड रूट्स, ये दो चीजें जो थी वो मजबूर कर दिया लोगों को, फॉरेनर्स को, टू फाइंड आउट न्यू सी रूट। एंड अनदर इन वास्को डी गामा रीच कैलिकट इन 1498। अब वास्को डी गामा जो था, एक्चुअली ही डिड नॉट वांटेड टू कम टू इंडिया। वो अपना शिप लेकर, बहुत सारे शिप लेकर वो निकला। कहां से? पोर्चुगीज से। क्यों निकला? फॉर डूइंग बिजनेस, राइट? और उस टाइम में कंपास जो था प्रिंस हेनरी ने इन्वेंट किया था, वो शुरू हो गया था। सो ही वांटेड टू डू एन एडवेंचर, और पोर्चुगीज के राजा ने उसको बहुत सारा पैसा दिया, बोला ओके जाओ तुम रास्ते ढूंढो, नए नए शहर ढूंढो। सो वास्को डी गामा बाय मिस्टेक ही केम टू इंडिया। उसको यह पता नहीं था कि मैं इंडिया में जा रहा हूं, बाय मिस्टेक ही केम टू इंडिया, राइट? और कहां पे आया? कैलिकट में। व्हेन डिड ही कम?
in 1498. So this was the second reason. Now third reason was यूरोपियन कंपनीज. यूरोपियन कंपनीज डेवलप हो रही थी और यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आ गई. यूरोपियन कंपनीज कौन थी? पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच. ये जो चार कंट्रीज थी, ये चार कंट्रीज जो थी वो बहुत ही एग्रेसिव थी पूरे वर्ल्ड को ढूंढने के लिए, और इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बनाई थी और उन कंपनीज में से वो लोग इंडिया में आए. दे केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर, राइट? And then the British expansion. Now, when the British came, क्या हो गया? फैक्ट्रीज होने शुरू हो गई. ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री शुरू की, उसके बाद ट्रेड कंट्रोल किया इंडिया का, उसके बाद मिलिट्री पावर बढ़ाया इंडिया में और पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाया. सो ऑल दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस व्हाट हैपन? ब्रिटिशर्स आए. ब्रिटिशर्स वर मोस्ट पावरफुल. पोर्चुगीज इतने पावरफुल नहीं थे, फ्रेंच इतने पावरफुल नहीं थे, डच इतने पावरफुल नहीं थे, बट Britishers were very powerful. They established their factories, they controlled on the trade of India, they expanded their military power, and they also imposed political control on the rulers of India. So इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने लगे. They ruled over us for 200 years. So I think this much is very clear to you that what were the reasons of coming of foreigners to India, reasons for arrival, sea routes, European companies and Britishers. These are the things they have developed and that changed the entire situation of India. पहले इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ था, राइट? पिछड़ा हुआ इन द सेंस टेक्नोलॉजी नहीं थी. फॉरेनर्स जब आए, यूरोपियन जब आए, ब्रिटिशर्स जब आए तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आए. उससे पहले हमारा इंडिया वॉज बेस्ट. स्पाइसेस हमारे इंडिया में होते थे, इंडिगो हमारे इंडिया में होता था, सिल्क का कपड़ा हमारे इंडिया में होता था, राइट? सो इन दैट वे वी वर गुड, बट टेक्नोलॉजिकली वी वर वेरी बैकवर्ड. तो जब ये लोग आए तो हमारा इंडिया टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप होने लगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लेसन इन डिटेल. नाउ फर्स्ट, व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया? देयर वर 5 रीजंस. European needed spices like pepper, cinnamon, cardamom, cloves. Now, why foreigners came to India? Why Europeans came to India? First is they needed spices like pepper, cinnamon, cardamom and cloves. These were only grown in Asian countries like India. अब ये जो जितने भी मसाले हैं वो सिर्फ इंडिया में उगते थे और कहीं होते नहीं थे पूरे वर्ल्ड में. सेकेंड, पूरे वर्ल्ड में मतलब अफ्रीका में होते थे, हाँ भाई. एंड देन the land routes to India were controlled by Arabs and Turkish. उस टाइम में जो लैंड रूट था, जो लैंड से वो ये फॉरेनर्स who were coming to India, they were coming through land route through Arab and Turkish, and that land routes were controlled by Arabs and Turkish. उस टाइम में अरब और टर्किश के लोग ये पूरे के पूरे रास्ते पे कंट्रोल करते थे, बहुत सारे टैक्सेस लेते थे, कभी कभी लूटते भी थे. और because of this, after the fall of Constantinople in 1453, routes became more expensive. अब कॉन्स्टेंटिनोपल वॉर के बारे में आप जानते हो, नहीं जानते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल का एक झगड़ा हो गया था और उसकी वजह से अरब और टर्किश लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और फिर जो रास्ता था इंडिया आने का वो बहुत कॉस्टली हो गया था और बहुत डेंजरस भी था. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन these foreign people thought to invent a new sea route जो इंडिया तक लेकर जाए. एंड यूरोपियन किंग स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू सी रूट्स टू इंडिया. और यूरोपियन के लोग थे ये बोले कि हम वी विल नॉट गो थ्रू अरब कंट्री और अरब लैंड और टर्किश लैंड. सो दे स्टार्टेड पुटिंग मनी टू फाइंड न्यू सी रूट्स टू इंडिया जो टर्किश के भी बाईपास कर दे, अरब को भी बाईपास कर दे और डायरेक्ट इंडिया में आए. सो दीज वर द रीजंस, राइट, why Europeans came to India. Okay. Next is discovery of new sea route. Now, Portuguese king encouraged sea exploration. पोर्चुगीज का जो राजा था वो बहुत पैसा देता था, बोला जाओ दरिया के रास्ते आप ढूंढो. So they started exploring sea routes, right? Then Prince Henry started navigation school. Bartholomew Dias reached southern tip of Africa, Cape of Good Hope. And Vasco da Gama reached India, that is in Calicut in 1498, and this opened the first direct sea route to India. This was the reason
ऊपर के जो रीजन बताए उसकी वजह से पोर्चुगीज किंग्स जो थे दे स्टार्टेड गिविंग मनी टू वेरियस पीपल हु वर डूइंग सी एक्सप्लोरेशन, दरिया की खोज कर रहे थे, एंड इन दैट बार्थोलोम्यू डेज एक्सप्लोर्ड and reached to South Africa, and Vasco da Gama reached to Calicut. Right. Next comes arrival of Portuguese. Now, first Europeans to arrive in India were Portuguese. Set up trading centers at Calicut, Cochin, and Goa. Alfonso Albuquerque strengthened the Portuguese rule, and later their power declined. Now, Portuguese जब आए तो they were the first people to arrive in India. उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस के सेंटर्स स्टार्ट किए कैलिकट में, कोचिन में, गोवा में. नाउ हाउ दे स्टार्टेड सेंटर्स, लाइक आज आप देख रहे हो, यू आर सीइंग डी मार्ट एवरीवेयर इज डी मार्ट, यू आर सीइंग रिलायंस स्टोर्स आर एवरीवेयर देयर, देन DIY स्टोर्स आर एवरीवेयर देयर. सो दैट इज सेंटर्स, उनको हम सेंटर्स बोलते हैं. इन सेम वे यूरोपियंस में सबसे पहले जो आए पोर्चुगीज, दे स्टार्टेड दिस सेंटर इन कैलिकट, कोचिन, गोवा. और क्यों स्टार्ट किया? यहां पर उन्होंने अपना एक फैक्ट्री बनाया, एक स्टोर हाउस बनाया, और इंडिया की जगह जगह अलग अलग जगहों से वो स्पाइसेस लेते थे, कपड़ा लेते थे, अपने गोडाउन में रखते थे, और कैलिकट से जहाज में पूरा पोर्चुगीज ये बेचते थे. राइट. सो कैलिकट, कोचिन और गोवा, ये तीन जो दरियाई एरिया थे, दे वर द पोर्ट्स. फ्रॉम दीज पोर्ट्स दे सेंड गुड्स टू पोर्चुगीज. राइट. अराइवल ऑफ डच. आफ्टर पोर्चुगीज का बिजनेस देखने के बाद डच ने सोचा कि हम भी चलो एक्सप्लोर करें. सो डच सेटअप द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602. देन दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन इंडियन ईस्टर्न कोस्ट. मेजर सेंटर्स मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत. अब डच जब लोग आए तो डच 1602 में 1602 में आए और उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, और उन्होंने अपने सेंटर्स कहां खोले? मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत. Their main focus was spices trade in Indonesia. उनको what was their main intention? To take the spices from India and sell to Indonesia. इंडिया से माल लेकर जाओ सस्ते में और इंडोनेशिया में माल बेचो. राइट. स्लोली withdrew from India after facing competition from British. लेकिन स्लोली डच जो थे, डच were not powerful people like ब्रिटिशर्स, तो उनका झगड़ा होता था ब्रिटिशर्स के साथ, और धीरे धीरे डच लोगों ने इंडिया में से जाना शुरू कर दिया. एंड अराइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी 1600 में, मैंने आपको पहले ही बताया. देन द फर्स्ट फैक्ट्री वाज स्टार्टेड एट सूरत इन 1613 एंड ग्रेजुअली एक्सपांडेड टू बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. पोर्चुगीज आए, दे स्टार्टेड ओनली देयर सेंटर्स, मतलब उन्होंने कोई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं की, उन्होंने एक पूरा गोडाउन बना दिया. राइट. एक गोडाउन बना दिया, उसमें माल वो स्टोर करते थे और वहां से बेचते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स केम एंड एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट्रीज. माल यहां पे बनाते थे और फॉरेन में वो बेचते थे. राइट. नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, धीरे धीरे क्या हो गया? वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए. पोर्चुगीज आए, वो ट्रेड करते थे. डच आए, ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब बिजनेस करते थे. फ्रेंच आए, बिजनेस करते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे ट्राइड टू बिकम रूलर्स. राइट. सो सुपीरियर नेवल पावर उनके पास था. क्यों वो रूलर बन गए? उनके पास जो नेवी का स्ट्रक्चर था, मतलब बहुत सारे जहाज थे, जहाज के अंदर बहुत सारे वेपन्स थे. सो वो धीरे धीरे पूरे सीज को कंट्रोल करने लगे. सेकेंड थिंग, डिवाइड एंड रूल. टुक एडवांटेज ऑफ फाइट्स बिटवीन इंडियन रूलर्स. अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने के बाद दे सॉ दैट इंडिया के जो राजा थे ना, वो आपस में लड़ते थे. राइट. दे वर फाइटिंग इन बिटवीन अमॉन्ग देमसेल्व्स. आपस में लड़ते थे. क्यों लड़ते थे भाई? राजस्थान का राजा है, वो कच्छ के राजा के ऊपर हमला करता था कि कच्छ के एरिया ले ले, गुजरात का एरिया ले ले. फिर महाराष्ट्र का राजा था, वो MP के राजा से लड़ता था. तो ये सब छोटे छोटे राजा जो थे, दे वर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. क्यों? उनको अपना एरिया बढ़ाने का था. अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि दीज रूलर्स आर वेरी वीक और वो आपस में लड़ाई करते हैं, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? डिवाइड एंड रूल. एक राजा को बोलते हैं कि मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, तुम मेरे को इतना पैसा दो. सपोज फॉर एग्जांपल मुगल राजा के पास गए, मुगल राजा को बोला कि तुम्हारा पूरा एरिया हम
सिक्योर करेंगे, हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके बदले तुम हमको ये चीजें दो। सो उस टाइम के राजा क्या थे, वो सोचते थे चलो मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है, सो दे स्टार्टेड गिविंग money, they started giving land, and they started giving the powers also. So they started divide and rule, right? Strong military system, better trained armies. अब ब्रिटिशर्स के पास मिलिट्री जो थी दैट वाज मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी थी। वो न पोर्चुगीज के लड़ सकते थे, न पोर्चुगीज उनसे लड़ सकते थे, न फ्रेंच उनसे लड़ सकते थे, न डच उनसे लड़ सकते थे। और इंडिया की आर्मी, इंडियन किंग्स के पास तो आर्मी ही बहुत वीक थी। भारत के राजाओं के पास सिर्फ तलवार थी और भाला बर्छी थे, उनके पास कोई गन्स नहीं थे, कोई तोप नहीं थे, कुछ भी नहीं था एट दैट टाइम। उसके बाद तो सब कुछ आ गया। सो और मिलिट्री और ये ब्रिटिशर्स के पास तो ये सारी सिस्टम्स थी। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दे डेवलप्ड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, साइन ट्रीटीज विद इंडियन किंग्स। हर एक राजा के साथ ट्रीटी, समझौता करते थे, भाई हम तुम्हारे पर हमला नहीं करेंगे, तुम हमको ये चीज दे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट यू, गिव दिस। सो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी खेल कर दे एस्टैब्लिश देयर एंटायर पावर इन एंटायर India, right? And then arrival of French. French East India Company was established in 1664. अब ब्रिटिशर्स को, पोर्चुगीज को, डच को, सबको देखकर फ्रेंच को ऐसा लगा चलो हम भी जाएं, हम भी इंडिया में बिजनेस करेंगे। सो उनके मेजर सेंटर्स कौन से थे? पौंडीचेरी, माहे एंड कारिकल, राइट? दे कॉम्पिटेड विद ब्रिटिश फॉर कंट्रोल। अब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयां होती थी। जिस एरिया में ब्रिटिश होते थे वहां पे फ्रेंच जाके लड़ाई करते थे, उधर के राजाओं के साथ भी लड़ाई करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस कर्नाटक वॉर वीकन द फ्रेंच एम्पायर, राइट? देयर वाज वॉर, कर्नाटक वॉर बोलते हैं, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दिस कर्नाटक वॉर वाज फॉट, बट कर्नाटक वॉर में फ्रेंच हार गए और उनका पावर कमजोर हो गया, राइट? एंड ब्रिटिश फाइनली बिकेम वेरी डोमिनेंट, और इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे पूरे डोमिनेंट हो गए। द मेजर बैटल्स दैट चेंज इंडियन हिस्ट्री। अब दो बैटल, दो लड़ाइयां जो पूरे इंडिया का नक्शा बदल दिया, फॉरेनर्स को पूरा पावर हो गया, पावर दे दिया, एंड दैट वर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 and Battle of Buxar was fought in 1764. Why? It was Battle of Plassey was fought between British Robert Clive and Nawab of Bengal Sirajuddaulah. Right? Now, why it was fought? Then the betrayal of Mir Jafar helped British win. अब सिराजुद्दौला के पास जो उसका एक वजीर था, मीन्स मिनिस्टर था, his name was Mir Jafar. So when Robert Clive tried to attack सिराजुद्दौला, बंगाल में जब ब्रिटिश ने हमला करने का सोचा, तो जो मीर जाफर था, जो मिनिस्टर था सिराजुद्दौला का, वो करप्ट था। तो ब्रिटिश लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको रिश्वत दी कि भाई तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास कितनी आर्मी है और तुम कहां कहां से लड़ाई करने वाले हो। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर ने पूरी की पूरी आर्मी की जो प्लानिंग थी सिराजुद्दौला की, वो प्लानिंग बता दी रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव को पूरा पता चल गया कि सिराजुद्दौला के पास कितने आर्मी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितने लोग हैं लड़ने वाले। सो सिराजुद्दौला जो था वो हार गया क्योंकि मीर जाफर ने उसके साथ चीटिंग की। एंड रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश कंट्रोल्ड एंटायर बंगाल, और पूरा ये 1757 बैटल ऑफ प्लासी की वजह से पूरा का पूरा बंगाल जो था वो कंट्रोल में आ गया, किसके? ब्रिटिश के। एंड देन बैटल ऑफ बक्सर। नाउ बैटल ऑफ बक्सर वाज fought between British versus combined force of Bengal, Awadh and Mughal Emperor. अब बैटल ऑफ बक्सर जो था वो बंगाल के राजा, अवध के राजा और मुगल एम्पर, ये तीनों मिलके ब्रिटिश के सामने लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। दे कंबाइंडली ट्राइड टू फाइट ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिश वॉन अगेन एंड द रिजल्ट फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल। अब ये तीनों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, बंगाल का राजा भी हार गया, अवध का राजा भी हार गया और मुगल एम्परर भी हार गए। और उसकी वजह से बंगाल का जितना रेवेन्यू था, अब रेवेन्यू कहां से आता है? फ्रॉम वेयर डू दे गेट रेवेन्यू? फ्रॉम फार्मिंग।
जो किसान अनाज उगाते थे और उसको बेचते थे, तो बेचने पर जो टैक्स राजा को मिलता था, वो अभी टैक्स किसको देना पड़ा? फॉरेनर्स को, ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स का खजाना जो था वो बढ़ता गया, राइट? सो इन दिस वे Battle of Plassey and Battle of Buxar changed the entire Indian history. Indian history में पहले तो पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, वो सब धीरे धीरे निकलते गए। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरा का पूरा जो सीन था वो चेंज हो गया एंड Britishers became so powerful that they started ruling to India. Decline of Mughal Empire. Right? Now, वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स थे वो सब वीक थे। लेटर लेटरल मुगल एम्परर्स वर इनएफिशिएंट, लेजी एंड इनएक्सपीरियंस। क्यों? कि औरंगजेब की जो औलाद थी वो इनएफिशिएंट थी। वो शेरो शायरी में, दारू में, नाच गाने में पड़ी रहती थी। उनको और कुछ सूझता नहीं था, लेजी थे। और उनके जो मिनिस्टर थे वो भी बेकार मिनिस्टर थे। इसकी वजह से जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूल्स आए, दे वर वेरी वीक। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनका फायदा उठाया। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू कंट्रोल सच बिग एम्पायर। मुगल जिनका एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन इसके जो औरंगजेब के बाद जितने भी एम्परर्स थे वो सब वीक थे। इसकी वजह से वो संभाल नहीं पाए। कोर्ट करप्शन। अब होता क्या था कि मुगल के जितने जितने एरियाज थे उसमें उन्होंने अपने अपने मिनिस्टर्स रखे थे और वो मिनिस्टर्स को वो नोबल्स बोलते थे। अब नोबल्स आपस में फाइट करते थे, ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया छोटा है, तो वो चाहता था कि दूसरे का एरिया भी वो हड़प ले। सो दे ट्राइड टू गेट other area also and they started fighting among themselves. Heavy taxes, people were unhappy. Now these Mughal empires, क्योंकि उनके पास खजाने का, उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? ओनली टैक्सेस। सो वो टैक्स के ऊपर टैक्स डाल के जाते थे और लोग जो थे अनहैप्पी थे, राइट? एंड लोकल गवर्नर सूबेदार बिकेम इंडिपेंडेंट। और जो लोकल गवर्नर्स थे, मतलब सूबेदार, मतलब एरिया का जो पुलिस वाला होता था, राइट, वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो उसको जो मन चाहता था वो करता था। तो जो करप्शन था ब्रिटिश जो करप्शन था मुगल एम्पायर में वो बढ़ गया। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते थे। एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू कंटिन्यूस वॉर। अब ट्रेजरी जो थी, मतलब मुगल्स के पास जो खजाना था वो धीरे धीरे खत्म होता था, क्योंकि रोज के रोज हर हर दो दो तीन दिन छः छः महीने में वॉर्स होते थे, आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी। और लड़ाई में तो खर्चा होता ही है, राइट? और रेवेन्यू का जनरेशन था ही नहीं कि भाई बहुत सारा टैक्स कहाँ से लाएं, एरिया तो छोटे छोटे होते जाते थे। सो जो उनके खजाना था दैट बिकेम टोटली एम्प्टी एंड नो रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी। अब क्योंकि एम्परर्स वर लेजी, मुगल एम्परर्स वर लेजी, दे वर इनएफिशिएंट, और उनके जो मिनिस्टर थे वो करप्ट थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नहीं कर पाते थे, नई कुछ चीज अपने अपने एरिया में नहीं लेकर आते थे, और आर्मी को वो डेवलप नहीं कर पाते थे। पैसा ही नहीं था तो आर्मी के लिए वेपन्स और कहां से खरीदते, राइट? एंड फॉरेन इन्वेजन्स। नादिर शाह 1739 में आया और उसने पूरे दिल्ली को कब्जा कर लिया, राइट? और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली अटैक सेवरल टाइम्स रिड्यूस मुगल अथॉरिटी। नादिर शाह आया, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे हमला किया और पूरे एम्पायर को कमजोर करके चला गया। अहमद शाह अब्दाली आया, बहुत बार हमला किया है दिल्ली पे और बहुत सारी दिल्ली की चीजें लूट कर चला गया। एंड राइज ऑफ रीजनल पावर। धीरे धीरे मराठा, सिख्स, राजपूत, निजाम्स, नवाब्स बिकेम स्ट्रॉन्गर। मतलब मुगल एम्पायर के आजू बाजू दूसरे और जो एम्पायर्स थे वो धीरे धीरे पावरफुल होने लगे, जिसकी वजह से मुगल्स कंट्रोल रिड्यूस टू स्मॉल एरियाज। और मुगल का जो बड़ा सा एरिया जो था वो धीरे 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 छोटा होता गया। दीज आर द रीजंस व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन इंडिया। नाउ इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन अराइवल्स इन इंडिया। अब यूरोपियन जब इंडिया में आ गए तो उसकी इफेक्ट भी तो होगी। क्या इफेक्ट थी? लेट्स सी। फर्स्ट, ट्रेड मोनोपोली, राइट? जो ट्रेड जो था वो कंप्लीटली किसके हाथ में चला गया? यूरोपियंस के हाथ में। कौन सा ट्रेड? जिससे बहुत सारा पैसा मिलता था इंडियन राजा को, वो सारा का सारा पैसा, वो सारी की सारी चीजें जो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, चाय,
ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन था वो सब फॉरेनर्स के हाथ में चला गया, इंडियन राजा के हाथ में कुछ भी नहीं था। देन इंडियन ट्रेडर्स लॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट। अब पहले जो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में से स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिको लेकर फॉरेन में बेचते थे। अब फॉरेनर्स ही यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपना कब्जा जमाने लगे, तो इंडियन बिजनेसमैन वीक हो गया, इंडियन बिजनेसमैन बिकम वीक एंड दे लॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट। देन प्राइजेस वेर डिसाइडेड बाय यूरोपियंस। अब फॉरेनर लोग आए हमारे घर में बैठे और हमको ही बोलने लगे क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना लेना है, कितने में लेना है, कितने में बेचना है। तो ट्रेड मोनोपोली फॉरेनर्स ने एस्टैब्लिश कर दी और हमारी इंडियन ट्रेड मोनोपोली बिल्कुल बिगड़ गई। नेक्स्ट जो था मिलिट्री डोमिनेंस। यूरोपियन इंट्रोड्यूस मॉडर्न वेपन्स, डिसिप्लिन आर्मी और नेवल पावर। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके पास मॉडर्न हथियार थे, उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी और उनके पास नेवी पावरफुल थी, मतलब शिप बहुत थे। सो दरिया पे पूरा उनके पास कब्जा था। इंडियन रूलर्स रिलाइड ऑन यूरोपियन आर्मीज। अभी यहां पर जब फॉरेनर्स आ गए उनके पास इतने सारे वेपन्स थे, आर्मी थी, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सप्लाइंग वेपन्स एंड आर्मीज टू इंडियन किंग्स। और इंडियन किंग्स पूरी तरह से अपने लोगों को छोड़ के फॉरेन के जो आर्मी ऑफिसर थे, फॉरेन के जो सिपाही थे, उनको सबको उन्होंने रखना शुरू कर दिया। सो व्हाट हैपन, घर में हमारा चौकीदार के बदले हमने बाहर के चौकीदार को रखा, फॉरेन के चौकीदार को रखा। अब हुआ क्या, फॉरेन का चौकीदार तो विश्वास नहीं होगा हमारा, तो इंडिया के चौकीदार को निकाल के इंडिया के राजा ने फॉरेन के चौकीदार को रख दिया। और फॉरेन का चौकीदार जो था वो वफादार नहीं था, वो तो सीधा सीधा जो कुछ भी होता, जो कोई भी इश्यू होते राजा के यहाँ पर, वो सीधा फॉरेन में बता देता और फॉरेन के लोग इसका फायदा उठाते। और battles like Plassey and Buxar changed the Indian politics. Political interference. East India Company started controlling kings and nawabs. East India Company जब आई बरोबर, तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। They took control over Bengal and what happened? They had political interference. मतलब कुछ भी मुगल राजा कुछ भी बोलता तो फॉरेन ऑफ ब्रिटिशर्स ये बोलते नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ये आप लड़ाई नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते, ये प्राइस हाइक नहीं कर सकते। सो एंड दे इम्पोज सब्सिडी सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड ट्रेड ट्रीटीज। ये क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, राइट। एंड देन सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन। अब फॉरेनर्स आए तो उनको तो हिंदी नहीं आती थी, उनको गुजराती नहीं आती थी, उनको मराठी नहीं आती थी। सो व्हाट दे डिड, क्योंकि फॉरेनर ब्रिटिशर्स आए तो ऐसा नहीं था कि दो चार लोग आए थे, वो तो हजारों की संख्या में अपने इंडिया में आए थे और उनकी ऑफिस हुआ करती थी, ऑफिस में काम किया करते थे लोग। अब उनको काम करने के सारे लोग तो वो नहीं लेकर आ सकते थे, they were not able to bring all the foreign people to India and start working. So what happened, they started teaching Indian students English. इंडियंस को वो इंग्लिश सिखाना शुरू किया। क्यों सिखाना, कि उनका काम चले, राइट। सो दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश। तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसकी स्कूलें धीरे धीरे कम होने लगी, लोग जो बड़े पैसे वाले थे वो सब इंग्लिश एजुकेशन में जाने लगे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, पहले हम हाथ से लिखते थे, फिर प्रिंटिंग प्रेस हुई। इसकी वजह से इनका जो एक्सपांसन था बहुत हो गया। देन मॉडर्न लॉ एंड कोर्ट्स। पहले जो जमाने में क्या होता था, जो राजा था उसको ऐसा लगता कि भाई इस आदमी ने चोरी की है तो बोला इसके हाथ काट दो, इस आदमी ने चोरी नहीं की है तो इसको माफ कर दो। तो अपने कानून करते थे, अपने हिसाब से अपने कानून चलाते थे और वो कानून लिखे हुए नहीं थे। देयर वर नो रिटन लॉज ड्यूरिंग मुगल रूल्स एंड एवरीबॉडी, राइट। सो व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे स्टार्टेड राइटिंग द लॉज, और वो रिटर्न लॉज जो थे वो कोर्ट्स में, मुगल की कोर्ट्स में और मराठे कोर्ट्स में सब में वो चलाने लगे। सो दिस वाज द सोशल इंपैक्ट दैट सिस्टम से हमारा इंडिया डेवलप हो रहा था और ब्रिटिशर्स उसको कंट्रोल कर रहे थे। रेलवेज एंड टेलीग्राफ ऑल्सो केम इनटू इंडिया एंड देन सोशली डिक्लाइंड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश गुड्स रिप्लेस्ड इंडियन हैंडमेड गुड्स। जो
पहले हम इंडिया में जो प्रोड्यूस करते थे हाथ से, मतलब जो शर्ट था या धोती थी या कुर्ता था, वो सब हाथ से हम बनाते थे। अब हुआ क्या कि जब फॉरेनर्स आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बहुत सारे मशीनरी, बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट कर दी, और जो कच्चा माल जो था, धागा है, कॉटन है, कलर है, वो सस्ते माल में वो खरीद लेते थे। दे वर परचेसिंग दोज रॉ गुड्स इन वेरी चीप रेट्स, दे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दे एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज एट हायर रेट्स। इंडिया में माल सस्ते में लेते थे, फॉरेन में, इंडिया में ही प्रोड्यूस करके फॉरेन में वो माल जाता, और फॉरेन में फॉरेन का ठप्पा लग के इंपोर्ट होकर जब आता था तो वो इंपोर्टेड गुड्स कहलाता था, और उसकी वजह से जो हमारा जो लोकल प्रोडक्ट्स था वो उसकी वैल्यू कम हो गई, और फॉरेन के इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो इंडियन का प्रोडक्ट्स था, हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गए, एंड वीवर्स एंड आर्टिसंस लॉस्ट लाइवलीहुड। तो वीवर्स मतलब जो बुनकर, जो कपड़ा बुनते थे, जो आर्टिस्ट जो उस पर डिजाइन करते थे, उनका धंधा चौपट हो गया। सो इन दिस वे वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट हाउ India lost its sovereignty and how Europeans came to India. So these are the main three reasons. European came for trade, stayed for profit and ended in political rule. Europeans आए किसके लिए? ट्रेड के लिए, फिर रहे क्यों के किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, और एंड में क्या हुआ? पॉलिटिकल रूलर बन के रह गए। उसका नतीजा क्या हुआ? इंडियन पावर्स वर डिवाइडेड, मेकिंग इट इजियर फॉर फॉरेनर्स टू डोमिनेट। इंडिया के लोगों को डिवाइड कर दिया, इंडिया के राजाओं को डिवाइड कर दिया, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, और फिर यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिशर पूरा डोमिनेट कर दिया इंडिया के ऊपर। एंड दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ यूरोपियंस अराइवल चेंज द इंडियन हिस्ट्री। आई होप the entire lesson is very interesting, and you see I have covered almost all the points in this, and it is so long chapter which I have taught you in very simplest of the simple way. I hope the lesson is very clear, and if you have any doubt, write in the comment box and I will help you to explain it in detail. मैं यहां पर एक बात बता दूं कि इस वीडियो को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू इन पॉइंट्स। अगर आपको पूरा लेसन, पूरा वीडियो समझने का है तो आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो यहां पर आपको नीचे मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज एंड यू हैव टू सबमिट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और join my channel. Thank you very much.